Hello everyone. So today we are going to start a very important topic, that is reproduction in fungi. Okay. So this is very interesting aspect कि हम पांचों किंगडम पढ़ते हैं लेकिन किसी भी किंगडम में हम रिप्रोडक्शन के टॉपिक को इतना एलेबोरेटली नहीं पढ़ते हैं. ओके. बट इन द फंजाई वी हैव टू डिस्कस इट अ लॉट. हमें बहुत इसके बारे में पढ़ना होगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई is mainly based on the type of reproduction, okay, or the reproductive structures they form or the methods they opt for the purpose of the reproduction or to continue the generation, right? So there are a number of methods, and in fact some of the fungi are given name by the particular method they apply in their life, right? So here we have to discuss about the different methods and the purposes to opt the different methods of reproduction. Correct? यहां पर ये बात मैं आपको फिर से बता देता हूं. रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंजाई की क्लासिफिकेशन के लिए. ओके. सो नाउ वी बिगिन द रिप्रोडक्शन इन फंजाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, as you all know right from the beginning classes, a little differentiation you will find in this class, that in fungi there are three types of reproduction. One is asexual, then sexual and vegetative. Okay, in any of the order you can study that. So there are three types of reproduction in fungi: vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. हर एक तरीके को बहुत ध्यान से पढ़ना है because all these methods will be useful in the classification of fungi. Correct? So we begin with the vegetative reproduction. Okay, so in the vegetative reproduction, what is the important feature of the vegetative reproduction? In this, the body is directly involved. Okay, body is directly involved. In fact, there is not a very big difference between asexual and vegetative. There is a slight difference. Okay, in asexual reproduction, special structures are formed. Like spores, वहां पर spores जैसी चीजें बनती हैं, हम डिस्कस करेंगे अभी, राइट? बट इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कोई बहुत ज्यादा स्पेशल स्ट्रक्चर्स को यूज में नहीं लिया जाता है. ठीक है, वहां सीधे सीधे बॉडी अपना रोल प्ले करती है, उसी से नए इंडिविजुअल को बना दिया जाता है. करेक्ट? नाउ यू लुक समवेयर, यू विल फाइंड दैट इन क्लास 10th you studied budding in asexual reproduction. Maybe yes, of course it is given there like that, but here we have to study in this format that I am going to tell you. Correct? So in vegetative propagation, the different methods that are used are fragmentation, budding, fission, sclerotia. The new word you are getting here, sclerotia, and rhizomorph. So we will be talking about each one by one, right? So first we talk about fragmentation. Okay, look, fragmentation is a word which simply means segmentation. क्या बोलते हैं इसको? Segmentation. देखिए, एक बात अपने दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? रिप्रोडक्शन है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन है. तो न्यू ऑर्गेनिज्म हमें बनाना है, अब वो कैसे बनेगा इस चीज को समझने की कोशिश हमें करनी है, राइट? सपोज आई टॉक अबाउट द फर्स्ट मेथड और वन ऑफ द मेथड, दैट इज फ्रेगमेंटेशन इन फंजाई. दैट विल लुक लाइक दिस. सपोज दिस इज अ थ्रेड ऑफ एनी फंजाई. क्या आप मुझे बताएंगे एक थ्रेड को क्या बोलते हैं फंगस में? जस्ट रिकॉल दैट, वी कॉल इट हाइफा. व्हाट यू कॉल इट? हाइफा. फ्रेगमेंट, सेगमेंट. अगर ये थ्रेड यहां से ब्रेक हो जाए, if it gets broken into 3 pieces, right, each piece will turn into new fungi. Each piece will turn into new fungi or fungus. Hence the fragmentation is the one vegetative type of reproduction in fungi. तो आप देख सकते हैं यहां पर कोई स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. ठीक है. So in the fragmentation, organism's body gets cut off and each piece will give rise to the new one, right? This was fragmentation. आपने पढ़ा भी था क्लास 10th के अंदर. अभी बात करते हैं हम बडिंग की. वेरी कॉमन फीचर इन द यीस्ट, और यीस्ट का प्रोपेगेशन, यीस्ट का फॉर्मेशन ही इस तरह से होता है. आप सब जानते हैं बडिंग कैसे होता है यीस्ट में. सो हियर वी लुक एट द बडिंग इन यीस्ट. You all know that yeast is a unicellular organism. What happens there? A bud arises, right? A bud outgrowth arises at one side like this. This will be bud in yeast, and the nucleus also gets started forming its
another part or the another nucleus, right? Then it will move to the bud area, and this bud will be separated ultimately, and the body will have number of buds on it, correct? So this is the way of budding. Each bud will give rise a new fungus. So this is a way of budding in yeast. Then after we talk about fission वर्ड का मतलब क्या होता है? फिजन वर्ड का सिंपली मीनिंग होता है स्प्लिटिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजन? स्प्लिटिंग, चीज का कट जाना. लेकिन यहां पर फ्रेगमेंटेशन भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन फिजन में और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है इसको समझना है. सपोज दिस इज अ हाइफा ऑफ फंजाई. ओके, सो व्हाट विल हैपन? constrictions will develop. There is not cutting, constrictions, संकुचन, सिकुड़न, constrictions develop होंगे like this. थोड़ा सा आपने याद किया हो तो अमीबा में ऐसा होता था. Constrictions develop होंगे and these constrictions will grow further inward and grow करते 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 ये आपस में मिल जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से यह सेगमेंटेशन हो रहा है by the constriction method. Hence we call it fission. ओके, तो हम इसको फ्रेगमेंटेशन न बोल के क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं. Each piece will give rise a new fungus. Correct? So these are three common methods for you. Now we talk about these two new methods of the vegetative reproduction that you have never studied in your life. This class you are going to study that one. Okay? So sclerotia क्या चीज होती है? देखो समझना. देखिए क्या करते हैं ये? To face the unfavorable conditions. So right now we are going to study about sclerotia. Okay, ये लिख रख के ध्यान से समझना आप. Unfavorable conditions. Unfavorable conditions कौन से होते हैं फंजाई के लिए? फंजाई के लिए unfavorable condition होती है drought, सूखा. Because fungi likes to live in moist conditions. तो अगर dry conditions आएंगे तो वो उसके लिए unfavorable situation हो जाएगी. तो how do they cope up with that? How do they face the unfavorable conditions? Now you look the special strategy they opt. Suppose these are the hyphae of the fungi and forming a mycelium, group of mycelium. What will they do? They will form a net-like structure. Net-like structure that will be interwoven. आपस में जाल की तरह हो जाते हैं. और जो बाहर वाले हाइफा होते हैं, वो एक रिजिड कोट बना लेते हैं जो अंदर वालों को प्रोटेक्ट करता है. राइट? तो जब सूखे की कंडीशंस निकल जाती हैं, ड्राई कंडीशंस निकल जाती हैं, ये अंदर ही अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं जब तक ड्राई कंडीशंस होती हैं, ड्रॉट होता है, एंड देन आफ्टर दे come out to give rise the new fungi. Okay, so this is a method to face the unfavorable conditions. Right? Next we talk about the final method, that is rhizomorph. देखिए यहां पर मैं आपको एक टर्म सिखाता हूं, ये आपको हमेशा काम आएगी. rhizomorph. देखिए राइजो का मतलब होता है रूट और रूट लाइक. राइजा वर्ड जहां भी आता है, राइजोबियम, माइकोराइजा, राइजा का मतलब रूट होता है, एंड मॉर्फे का मतलब होता है शेप. मॉर्फे का मतलब क्या होता है? शेप. मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट? शेप एंड फीचर्स. तो यहां पर हम कुछ ऐसा देखेंगे जिसमें फंजाई रूट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है. सो व्हाट हैपेंस देयर? व्हाट द फंजाई डू? दे फॉर्म net-like structure, but in the shape of root. Interestingly, they also perform the function of absorption of water. Where do they live? जहां पर वो रहते हैं वहां पर वो ये rhizomorph कहलाएगा. इसको क्या बोलेंगे आप? Rhizomorph, because it is having a shape of root-like structure and it tries to absorb the water from the soil. Hence we call it rhizomorph. ये भी एक तरीके से सूखे से बचने का तरीका है. इसमें बाहर वाले थोड़ा सा डेड हो सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो थ्रेड्स होते हैं, हाइफा होते हैं, दे रिमेन प्रोटेक्टेड. करेक्ट? सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स इन फंजाई which are coming under the
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप एक समझने की कोशिश करें, सिर्फ एक ही मेथड था भी, कौन सा? वेजिटेटिव, जिसमें इतने सारे पढ़ लिए हमने। दैट मीन्स हमें और वाइडली पढ़ना है। देन आफ्टर वी विल बी मूविंग ऑन टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन यही वो टॉपिक है जो फंजाई को क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। सो वी हैव टू स्टडी दैट, राइट? So now we start discussing about the asexual reproduction. अभी थोड़ी देर पहले तक हम पढ़ रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंशिएशंस करने हैं, ठीक है? अपने दिमाग को आप कंपैरेटिव मोड में लेकर आइए और समझने की कोशिश करिए कि ये कैसे हो रहा है, राइट? सो हियर वी आर बिगिनिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहली बात, as we are writing asexual, that means the sex is not involved. Sexual reproductive structures are not involved. In fact, in fungi, asexual reproduction is accomplished especially by the formation of spores. किसके थ्रू होता है? स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है ना? तो जो स्पोर्स होते हैं वो अपने आप में दानेदार ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। छोटे छोटे दाने जैसी स्ट्रक्चर्स को स्पोर बोला जाता है। अब उसका फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, राइट? अब स्पोर्स के बारे में देखिए क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है। Either they are motile or non-motile. Either they are being formed in the favorable conditions or in the unfavorable conditions. Correct? So देखिए यहां पर हम different types of spores के बारे में बात करेंगे और वो कैसे बनते हैं, कहां बनते हैं, इसे हमें देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम zoo spore की, right? As you can see the name is coming here zoo. Zoo का मतलब होता है एनिमल। क्या होता है? एनिमल विच इज मोटाइल, जो चलता है, ठीक है? ऐसे स्पोर्स जो चल सकते हैं। तो देखिए वो कहां बनते हैं और क्या होता है। जहां बनते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ज़ूस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? ज़ूस्पोरेंजियम। जू का मतलब एनिमल लाइक, स्पोर, स्पोरेंजियम टू बियर। जो ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऐसे स्पोर्स बनाता है जो चलने वाले होते हैं, मतलब वो इस तरह के होंगे, ये ज़ूस्पोर्स होंगे। ज़ूस्पोर्स इसलिए कह रहे हैं इनको बिकॉज दे आर मोटाइल एंड दे आर हैविंग फ्लैजेला, सो दे आर कॉल्ड एज ज़ूस्पोर। थोड़े से अक्षर छोटे हैं, जगह कम है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है? सो ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ज़ूस्पोर्स लगते हैं क्योंकि इसमें फ्लैजेला होते हैं। तो ये स्विम करता है, स्विम करने के बाद अपने फ्लैजेला को कट ऑफ करता है और नया फंगस बना देता है। ये जो थ्रेड मैंने बनाए हैं ये सब हाइफा हैं। क्या है? हाइफा है। इनके ऊपर ये स्ट्रक्चर्स लगते हैं, ठीक है? यहां जहां ये लग रहा है इस स्ट्रक्चर को आप नाम देंगे ज़ूस्पोरेंजियोफोर। ज़ूस्पोरेंजियोफोर। नए नए वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहें। इसके बाद आता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्या बोला? स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये नॉन मोटाइल है, सिर्फ ये मोटाइल होते हैं, बाकी सब नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है? ये कहां लगते हैं? दिस इज द स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजियम। व्हाट वी कॉल इट? स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर लगेंगे क्या? स्पोर्स। क्या लगेंगे? स्पोर्स लगेंगे इसके अंदर। किसके अंदर? स्पोरेंजियम के अंदर। दीज आर द स्पोर्स। व्हेन द स्पोरेंजियम गेट्स मैच्योर्ड it bursts and spores come out and these spores on earth germinate to give rise the new fungus, ठीक है ना? इसके बाद लोग करते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्लेमाइडोस्पोर्स दे आर फॉर्म्ड इन अनफेवरेबल कंडीशंस। देखिए ये ओरिजिनल थ्रेड है, ओरिजिनल हाइफा है, इसके अंदर मैं बना के आपको बताता हूं। यहां पर क्या होगा, व्हेन इसी थ्रेड के अंदर स्पोर्स बनेंगे with reserve food and thick wall to face the unfavorable conditions, ठीक है? ये जो बना है इसको आप नाम देंगे क्लेमाइडोस्पोर। क्या नाम देंगे? क्लेमाइडोस्पोर। Each क्लेमाइडोस्पोर will germinate and this क्लेमाइडोस्पोर will germinate to give rise the new fungal hypha, ठीक है? यहां पर क्या नोटिस करने वाली बात है कि इनके अंदर होता है रिजर्व फूड होता है। क्या होता है भैया? रिजर्व फूड विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द अनफेवरेबल कंडीशंस। इसके बाद मूव करते हैं ऑइडियोस्पोर्स भी इनको कहते हैं। तो ये इसमें बेसिक पैटर्न जो लगेगा वो है कट ऑफ का, चीज का कटना, कट जाना। तो होगा क्या? ये कट जाते हैं इस तरह से किसी भी कारण से, और कटने के बाद जो स्पोर बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑइडिया। क्या बोलते हैं उनको?
ऑइडिया, ये कहलाते हैं ऑइडिया, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं ऑइडिया या ऑइडियम। एक एक जो होगा वो कहलाएगा ऑइडियम, ऑइडियम। ईच ऑइडियम विल गिव राइज द न्यू फंगस व्हेन इट जर्मिनेट्स। वो सबकी प्रोसेसिंग सेम है। अब इसके बाद आता है कोनिडिया, ठीक है ना। कोनिडिया जिस पर लगते हैं उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। ये फोर का मतलब समझ जाइए, टू बेयर होता है, फोर का मतलब टू बेयर। ये भी ऐसी ही स्ट्रक्चर बनाते हैं। डिफरेंस क्या है, यहां कट होकर वहां कॉन्स्ट्रिक्शन से, किससे, कॉन्स्ट्रिक्शन से पॉसिबल होता है। मतलब इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शंस बनेंगे लाइक दिस, ये कॉन्स्ट्रिक्शंस बनेंगे, ये कॉन्स्ट्रिक्शंस बनेंगे और कॉन्स्ट्रिक्शंस से बनते 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 फाइनली जो स्ट्रक्चर्स इनके पास बनकर आती हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं, ठीक है। तो ये बन जाते हैं कोनिडिया। व्हाट आर दीज? कोनिडिया। ईच वन इज कॉल्ड एज कोनिडियम। एक एक को बोलते हैं कोनिडियम, ठीक है। अब आप समझने लगे होंगे सिंगुलर और प्लूरल का system. Okay, so this was all about the vegetative reproduction and asexual reproduction in fungi. So it is a long topic, not possible to study comfortably in a long video. So we split that into two parts, part 1 and part 2. So this is all for today, where we have studied about the vegetative reproduction and asexual reproduction in fungi. Later on in the next video we will discuss about sexual reproduction in fungi. Okay, till then keep studying. Thank you.